यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे. To start with, Indian Constitution and polity, all of you are for civil services, right? State वाले भी कोई हैं? शुरू में सब यूपीएससी वाले होते हैं. In due course of time, they start appearing for state PCs, and nothing wrong with that if you plan it properly. So, what is Indian Constitution and what do you understand by polity? Anyone who can attempt to define it? Polity क्या है? Politics से अलग है. What actually is polity? Everyone? प्रयास करें. प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर कॉन्स्टिट्यूशन फिर थ्योरी हो गई. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज थ्योरी, इज इट सो? इफ इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इज दिस द थ्योरी? All of you agree that this is theory? What if I tell you there have been more than 100 amendments to the constitution? Theory बदल गई फिर तो. More than 100 amendments to the constitution, which means theory has been changed, or it keeps on changing. So will it be right thing to call it a completely theoretical framework? Organized? Okay, any form of organized unit. Why do we need constitution? What is the need of constitution? For what? For एक एक करके. हाँ बताएं, इधर कोई बोल रहा था. थोड़ा हाथ उठा दो ताकि मैं लोकेट कर पाऊँ. कहाँ है? बोलिए. यस. To run the center and state government. There are center and state governments where there is no constitution. There have been such governments. What else? To make a peaceful environment. What if the constitution itself is violent? Need of amendment. So how many amendments will you do? Already 100 done. See, first we need to understand why we need a constitution. And modern world, आज के लिए मैं बस थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊंगा ताकि ये चीज़ें समझ में आ सके. There cannot be a present without a history. Everything has to be understood in the context of it. So why do we need constitution is necessitated by the fact that entire medieval history anywhere in the world was not having a proper constitution, though Plato and Aristotle have talked about these things, but there was no rudiment. It was in a very rudimentary stage. Rudimentary मतलब बहुत ही rough work था. जैसा आज हम देखते हैं वैसा नहीं था. So there was a form of government in those times, ancient and medieval times. What do we call it? Monarchy. Good. What does this word mean to you? What is monarchy? And what is monarch? That's what I'm asking. See, it's good we are discussing these things. Monarch means king or the queen. Okay. Hitler was not a monarch, but he was ruling just one person. Okay. Arbitrary. किसने कहा? What does that mean? Arbitrary? अपना खुद का नहीं. Arbitrary means you can do the thing that you can do things the way you want, anytime, anyway. No rule, no law. अभी मन किया उठ के चले गए, कभी मन किया आ गए. क्लास है, कथा नहीं है, right? So that would be arbitrary.
If the class ends at 8, I remember my college days, so if we used to enter 10 minutes late, we were denied attendance. Okay, so why? ऐसा क्यों? क्योंकि आर्बिट्ररी आना जरा नहीं हो, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा. क्या लगता है, who will engage into arbitrary acts? Someone who has complete control? High chances of monarch being engaged into arbitrary acts? Very high chances. There is nothing to stop him or her. So this is how our history has been. I guess this is the first module, that major module that I'm starting with. आपने अभी और GS में कुछ नहीं पढ़ा है, right? शायद कुछ और क्लासेस हुई हैं. हाँ, so that's a small part in your paper 3. मेजर में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, यही सब आता है. एक तो दैट्स वाई आपने अभी हिस्ट्री, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने जब आपसे पूछा कितनी पॉलिटी पढ़ी है तो यू वर वेरी ऑनेस्ट टू से कि नहीं पढ़ी है. सो इंटायर मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री इज़ अबाउट मोनार्क्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इन इंडिया, इन वर्ल्ड, कहीं भी उठा लो, हर जगह राजा रानी की कहानियाँ चलती हैं, राइट. एंड दीज मोनार्क्स वेयर नॉट वेरी बेनेवलेंट मोनार्क. बेनेवलेंट मतलब बहुत दयालु लोग नहीं थे. अच्छे राजा रानी बहुत कम थे. दे वर वेरी few aberrations of it. So these people used to exercise absolute authority. Okay, these people used to exercise absolute authority. No check. इनको टोकने रोकने वाला कोई नहीं था. Okay, so this is how the history has been. Then something happened in Europe. You will read about these things in your world history again in paper 1. And some revolutions started in different parts of Europe. It started with England, came to France, spread to other countries, started in America. Okay, so suddenly Europe discovered something. Okay, यूरोप के पास में कुछ नई चीज़ आ गई जिससे अभी तक 15th century तक लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था. So that new thing was the way they used to question the status quo. You know what is status quo? यथा स्थिति इसको हिंदी में कहते हैं, जैसा है बना रहे. द मोमेंट योर एग्ज़ाम फॉर्मेट चेंजेस, इस एरिया में रहने वाले कुछ लोगों के पेट में मरोड़ें होने लगती हैं. क्यों? बिकॉज दे प्रेफर स्टेटस को. 4 साल से एक किताब पढ़ रहे हैं, अब जब याद हो गया है औरंगजेब के जूते का नंबर क्या है तो सिलेबस चेंज कर दिया. सो पीपल प्रेफर स्टेटस को. कोई भी चेंज नहीं होना चाहता है. It applies to individuals, it applies to the nations. This was happening in Europe. Monarchy was hand in gloves with the religion. Religion मतलब धर्म इसको legitimize करता था. सब चर्च की कारस्तानी थी, आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में. हाँ, so suddenly things changed and people started demanding democracy. So democracy as we know today everywhere in the world has come after long struggles. Okay, it has numerous people have died, lot of bloodshed has happened, and then the form of government as we see today, that the form that we practice today has been available to all of us. ऐसा नहीं है कि हम जब आए हैं तब से, नहीं, बहुत generations लग गए, सैकड़ों साल लग गए. Okay, and then there was a guy in US, heard of him? John Locke. नाम सुना इनका? क्या सुना है? French Revolution. Okay, so he gave a very famous quote that let the man be free from the yoke of the state. Am I audible to all of you at the back? Let the man be free from the yoke of the state. इंसान को स्टेट के शिकंजे से मुक्त करो. Because state was controlled by, स्टेट मतलब आप गवर्नमेंट मान लो स्टेट को, नेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, राज्य वाला स्टेट नहीं. ओके, सो स्टेट वाज कंट्रोल्ड बाय मोनार्क हु वाज एंगेज्ड इनटू डूइंग आर्बिट्ररी एक्शंस. आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा अगर आपने कुछ गलत किया है, दैट डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज योर रिलेशन विद द मोनार्क. ओके, इफ यू कमिट अ मर्डर बट यू आर हिज फ्रेंड, ही विल फॉरगिव यू. If you do a pickpocket,
किसी का जेब कतर दिए एंड यू आर नॉट लाइक्ड बाय द मोनार्क, ही विल से बिहेड हिम. दिस इज आर्बिट्रीनेस, राइट? योर प्रिपरेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा. कहीं से भी कुछ भी उठा के अगर पढ़ने लग जाओगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा. दैट्स वाई देर इज़ अ मेथड टू आवर अप्रोच फॉर एग्ज़ाम. सो आर्बिट्ररी मीन्स if you do things the way you wish without any rules, regulations or format, right? So that is how the government was. So then people started demanding democracy. अब ये सब कैसे हुआ, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी है. They will learn about what is Renaissance, what is enlightenment, so on and so forth. I'm not going into those details. So Locke said let the man be free from the yoke of the state. मतलब state के लिए reduced role. State का काम regulate करना है, ठीक है? हर चीज़ स्टेट नहीं प्रोवाइड करेगी. पीपल कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओन. स्टेट विल जस्ट क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट. इनेबलिंग इन्वायरमेंट मतलब देखिए, हम आपको क्लास देते हैं, एग्जाम आपको देना है. वी आर हियर टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर यू, राइट? आपकी जगह हम लोग तो जाएंगे नहीं, आपकी जगह हमने तो ये सब पढ़ना नहीं है अब. ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ द स्टेट एज थॉट बाय द लाइक्स ऑफ जॉन लॉक. तो जॉन लॉक की तरह जितने लोग सोचते थे उनके लिए एक टर्म यूज हुआ, लिबरल्स. ऑल दोज हु यूज्ड टू थिंक ऑन हिज लाइन ऑफ थिंकिंग, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म. तो उनको क्या कहा गया? लिबरल्स. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका? लेट पीपल बी फ्री, लेट स्टेट नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ओके, अगर हर चीज़ में स्टेट घुस जाएगा आपको परेशानी हो जाएगी. सुबह उठ के कौन सा अखबार पढ़ना है और रात में सोते समय किस करवट सोना है, अगर स्टेट डिसाइड करने लग जाएगा तो जीना हराम नहीं हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ व्हाट ही सेड. एंड एक लिबरल थॉट प्रोसेस आया. ओके, और एक और लिबरल थे, वोलाटायर. ही सेड दैट आई डिसएग्री विथ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टिल डेथ ऑफ योर राइट टू से इट. This quotation sums up the entire theory of liberalism, that I disagree with what you say, but I will defend till death of your right to say it. समझ में आई है? किसी को डाउट है तो पूछ लो. That I might not agree with what you are saying, but you can say these things. I will stand for it. आपको कहने से कोई रोक नहीं सकता है. आपकी बात मुझे अच्छी लगे या बुरी लगे. So liberal मतलब स्टेट का रोल कम, लोगों का, सिटीजन्स का रोल ज़्यादा है. डिसएग्रीमेंट भी है तो सिविलाइज तरीके से, मारकाट नहीं. सो करंट वर्ल्ड ऑर्डर दैट वी लिव इन इज अ लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? coming to it, it is actually a Greek word polis, POLIS. जो बताया उसमें समझ में आ गया सब कुछ, कि कैसे लिबरल ऑर्डर एक डेवलप हुआ, मोनार्क्स के अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई और डेमोक्रेसी की बात होने लग गई. अब क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गया? ओके, मोनार्क्स आर गॉन, राजा रानी चले गए हैं, डेमोक्रेसी आ गई. डेमोक्रेसी क्या है? वेयर यू चूज योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ आप डिसाइड करेंगे कि आप पर रूल कौन करेगा. दिस इज डेमोक्रेसी. इसके कुछ फीचर्स है. व्हाट आर दोज फीचर्स? फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शंस, राइट? हर 5 साल पे फ्री एंड फेयर, regulated by a constitutional body in India called the Election Commission, and everyone will have equal rights to vote actually. So whether you are 18-year-old or 81-year-old, whether you are an illiterate or a PhD, whether a man, a woman or a transgender, you all have one vote. फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी डिग्री कितनी है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपकी एज कितनी है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपका धर्म क्या है, इससे फ़र्क पड़ रहा है. So these are the hallmarks of democracy, that everyone will have one vote. मेजर जो हो गया, जिसका 18 एंड अबव एज हो गया है, और टाइमली इलेक्शंस होंगे. तो राजा रानी चले गए, फिर वो कहानियों में रह गए, डेमोक्रेसी आ गई. नाउ व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेमोक्रेसी? और इसी से एक टर्म आता है
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहा है, आता रहेगा, सो इस बार भी प्री में था. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ डेमोक्रेसी केम. इतना तो सबको आ गया समझ में. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आ गया फिर? अब मैं अपने पहले प्रश्न पे आता हूँ, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आप लोगों से पूछा था. यू पीपल गेव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज. कैन यू रिकॉल दोज रिस्पॉन्सेज? Earlier I asked, the moment I came in, why do we need constitution? To run a country, you said, administer a country. You also said something? England has no written constitution. Is it a lawless country? A written law is required, point again. What else? To maintain law and order. Rules and regulations by which country should be run. Now this is where whatever we talked till now will come very handy here, because we know how democracy has been established. एक दिन में तो नहीं आना. आपको लगता है जो राजा रानी, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे लुई द 16 के बारे में, मतलब 15 लुई हो चुके थे, तो तब से चले आ रहे हैं. रशिया के बारे में आप पढ़ोगे, रास्पुतिन के बारे में, ज़ार्स के बारे में, तो वही जनरेशन. मुग़ल, आपको बाबर से औरंगजेब तक तो याद ही होंगे. अपने घर का अगर 4 जनरेशन पूछ दूँ, बता पाओगे? बाकी लोग भी ट्राई करिएगा कभी. सोचिए 200-300 साल से एक ही जनरेशन, एक ही डायनेस्टी रूल करती थी. दे वर नॉट वेरी ग्लैड दैट द पावर इज़ पार्टिंग अवे. उनको डेमोक्रेसी लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. सो ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कन्फ्रंटेशन, बैटल, स्ट्रगल्स, वॉर्स होते रहे हैं. वंस डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश एंड ऑल दीज मोनार्क्स वेर थ्रोन बैक, किक्ड अवे और मेड इररिलेवेंट. इंग्लैंड स्टिल हैज़ अ मोनार्क, बट इंग्लैंड के बारे में कहते हैं द किंग इज बाउंड टू साइन हिज डेथ वारंट. अगर इंग्लैंड की पार्लियामेंट डेथ वारंट भेज दे तो उस पर साइन करना पड़ जाएगा. और वहाँ की मोनार्की के मजाक में ये सब बात कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी 5 किंग्स, 4 इन द कार्ड्स एंड 1 इन इंग्लैंड. तो 5 राजा हमेशा रहेंगे, 4 ताश में और 1 इंग्लैंड में. मतलब कोई काम का नहीं है वो. द किंग कैन डू नो रॉन्ग बिकॉज ही कैनॉट डू एनीथिंग. So monarchs either are gone or are made irrelevant, redundant or useless, right? Now a democratic order has come. People are electing their representatives. There is a president or a prime minister depending on the form of the government that the country has adopted. USA has presidential form, India has parliamentary form. Okay, so now the government has been formed. Still the constitution will be there. So that government अपने आप को मोनार्क न मानने लग जाए. So this is where the term constitutionalism came. It means limited government. Okay, it means limited government. ये आपके इस बार प्रीलिम्स में आया भी था. लिमिटेड गवर्नमेंट. सरकार को ये बताया जा रहा है कि आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है. यू हैव वन द इलेक्शंस, यू आर द गवर्नमेंट, बट डू नॉट फॉरगेट द रूल्स. डू नॉट ट्राई टू बी अ मीडिएवल और एन एंशिएंट मोनार्क. दिस इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड. गॉट इट? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? आएंगे इस पे. नहीं, अमेंडमेंट का भी, अमेंडमेंट कैसे होते हैं पता है? कितने तरह से अमेंडमेंट होता है बताओ? नहीं, प्रोसेस नहीं पूछ रहा हूँ. देयर इज दिस आर्टिकल 368 थ्रू विच यू कैन डू एन अमेंडमेंट. और लोकसभा में बिल जरूरी थोड़ी है, राज्यसभा में भी आ सकता है, किसी में आ सकता है. फिर एक नंबर चाहिए उसको अमेंड करने के लिए, फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है.
एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने संसद के बनाए बिल को नल एंड वॉइड किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया हो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो नो? एनजैक, NJAC, नाम सुना इसका? इसीलिए अभी इनमें नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर एनजैक क्या है ये बताने के लिए आपको पहले कलीजियम क्या है ये बताना पड़ेगा. सो ऑल दिस टर्म्स माइट साउंड ग्रीक टू यू ऑल ऑफ यू, जैसे पॉलिस जहाँ से पॉलिटी आता है, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे. अभी जितना बता रहा हूँ उतना मान लो, आगे बताऊँगा कि क्यों ऐसा आपको कहा गया. ओके, बिकॉज अगेन हाउ एनजैक केम एंड व्हाट इज कलीजियम दैट विल नीड 3 to 4 classes to explain जब हम जुडिशरी को पढ़ेंगे. So there is something which limits the government, sets some kind of restrictions on the government. That is what? The constitution. And the entire process is called constitutionalism. Okay? Constitutionalism enables limited government. I'll make you write these things, don't worry. समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई प्रश्न है? हाँ. Now, if the government breaks such restriction, now again there are a lot of ways through which the government can break this. So which way are you talking about? There are checks and balances. There are several checks and balances in Indian democracy. I'll come to all these things. आज मैं आपको लिखवा नहीं रहा, बस मैं आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. Is it all right? आगे पढ़ेंगे ये सब जितना भी आज मैं आपको बताऊंगा. हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो ये चलता रहेगा. सो लेट अस इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ टू व्हाट वी आर स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 months. 2 महीना तो लगता ही है. सो एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट पर लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप आर्बिट्ररी एक्ट नहीं कर सकते हो. You cannot act arbitrary, you have to obey the law of the land. Constitution of India is the supreme law of the land. All other laws must abide by the constitution, मतलब उसके अनुसार ही होने चाहिए, उसके contrary या उसके विरोध में नहीं होने चाहिए. Got it? Any other question here? So this is how constitutionalism came, this is how limited government came. Now, as you asked that what if the government tries to, what was your question? Break these restrictions, okay, set by the constitution, right? So abhi tak practicing some tattoo. So abhi tak हमने इतना समझ लिया that constitution limits the role of the government and prescribes a way for it. This is how you should perform, this is something that you should not do, and this is something that you should do. एक आप समझ सकते हो कि एक मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, ऐसे करना है काम. अब जैसा आपने कहा कि अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की कोशिश की, इफ़ दे ट्राई टू एक्ट आउट ऑफ द रूल्स सेट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट विल हैपन? So there are several checks and balances. There is something called checks and balance. How do you go for checks and balances when you are, how do you go for checks? Preparation में आप check कैसे करते हो? टेस्ट देते हो, औकात पता चल जाती है एक टेस्ट में, फिर से नोट्स और किताब खुल जाते हैं, राइट? तो उसी तरह इंडियन डेमोक्रेसी में भी चेक्स हैं और बैलेंसेस भी हैं. बैलेंसेस मीन्स दैट one organ will not encroach in the other organ. अब है क्या, इसको समझना पड़ेगा. जो स्टेट है उसके कुछ पार्ट्स हैं. एनीवन, किसी को मालूम है? 3 पार्ट हैं. यस यस प्लीज. ओके, legislative, executive, judiciary. All of you were aware of these 3 things. ऐसा कोई जिसको नहीं मालूम था? तो जब सबको पता है तो बता दो लेजिस्लेटिव क्या होता है.
What? They will make laws. Can you give me an example? No. An example of legislative, as you said, Lok Sabha. What about Rajya Sabha? They will also make. What about Vidhan Sabhas? What about Vidhan Parishads? Are they making law or not? So Rajya Sabha and Lok Sabha make laws for? Can they not make laws for the states? Are you sure? Okay. So legislative actually means law making body. कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट. ये सबको मालूम है? ऐसा कोई जिसको नहीं पता हो? सी दीज आर वेरी वेरी बेबी थिंग्स. ओके, बेसिक्स का भी बेसिक है ये सब. तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट कंसिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स ऑन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में किसके लिए लॉ बनता है? इंडिया के लिए, देश के लिए. पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. Indian Parliament has 2 houses. It is called bicameral. What are the 2 houses? Lok Sabha and Rajya Sabha. So both these houses of the Parliament will make law for central. इसको कहते तो है यूनियन लिस्ट. एक्चुअली यही टर्म यूज हुआ है, यूनियन लिस्ट. इंडिया के लिए कोई लॉ बनाना है, कहाँ बनेगा? पार्लियामेंट में बनेगा. पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? नाम क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? 550. कब हो गई? अभी कितनी है? 545, 543. एंग्लो इंडियन को हटा दिया ना, 2 साल हो गए. एंग्लो इंडियन हट चुके हैं, 2019 में ही हट गए. Currently there are 543 seats in Lok Sabha. Rajya Sabha 250 तो मैक्सिमम है. अभी कितने? 12 नॉमिनेटेड कहाँ गए? Somewhere around 245. Okay, in Rajya Sabha. So these many people will make laws for India. Okay. Now there are different states. Every state has a विधान सभा, असेंबली कहते हैं उसको. सो एक स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट असेंबली लॉ बनाती है. हिंदी में इसको विधानसभा कहते हैं. I'll go into more details, अभी बस इतना ही समझो. लेजिस्लेटिव मीन्स स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट. सेंटर क्या होता है? लेजिस्लेटिव पूछ रहा हूँ ना. सेंटर में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, राइट? सो लेजिस्लेटिव इज, व्हाट इज लेजिस्लेटिव? इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी. सो विच आर द लॉ मेकिंग बॉडीज इन इंडिया? फॉर सेंटर इट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. हाउ मेनी हाउसेज इट हैज? Lok Sabha and Rajya Sabha. For state, so there are some topics which are reserved for state. Which body will make law for it? स्टेट असेंबलीज और विधान सभा. नाउ टॉपिक कौन से हैं जिस पे सेंटर लॉ बनाएगा या स्टेट लॉ बनाएगा? तो सेंटर को कुछ लिस्ट दे दी गई है कि इन टॉपिक पे आप लॉ बनाओ. डिफेंस ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पूरी एक लिस्ट है. स्टेट हैज़ ऑल्सो गॉट सम लिस्ट. एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, ये सब स्टेट लिस्ट है. इस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है. देयर इज अ थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड concurrent list. Both
center and state can make laws on it. If there is a conflict between their laws, of course center का law prevail कर जाएगा. तो ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं. एग्जाम्पल, एजुकेशन ठीक है, टैक्स टू सम एक्सटेंट, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में. व्हाट? उसका एक रीज़न है, देयर इज़ एन अमेंडमेंट. नेहरू जी ने एक अमेंडमेंट किया था, इसीलिए जो फार्म लॉज बने सेंटर ने बना दिया. क्या? अगेन एक अमेंडमेंट है, उसके बारे में बताना पड़ेगा. देखेंगे फार्म लॉज को डिटेल में देखेंगे. 3 लॉ है फार्म लॉ जो अमेंड हुए हैं, तो अभी उसमें टाइम है, अभी रुक जाइए. अभी बस इतना जानिए कि कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं. अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंट्रल लॉ वुड प्रिवेल. कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है? 26th of January 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड और इन्फोर्स्ड ऑन इंडिया. आज से लागू हो गया. तो उस समय साइबर लॉ कहाँ जाएगा? Was there something called cyber in 1950? अभी बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा पर. ये सब चीज़ें 1950 में थी. तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो तीनों में से कहीं ना हो, यूनियन में भी नहीं, स्टेट में भी नहीं, कंकरेंट में भी नहीं. दैट टॉपिक विल कम इन रेसिडुअरी लिस्ट. और ये बाय डिफॉल्ट किसके पास रहता है? यूनियन के पास, मतलब सेंटर के पास. एनी सच टॉपिक जो कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में पता चल गया कि आज ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनेट है, आईटी एक्ट आया था, तो दैट विल कम ऑटोमेटिकली इन रेसिडुअरी लिस्ट. एंड रेसिडुअरी लिस्ट इज ऑलवेज अंडर यूनियन. सो अब कितने लिस्ट हो गए हमारे पास? 4. सबको याद है? नो कन्फ्यूजन व्हाटसोएवर? एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क? जितना पढ़ा है उसी से, आगे नहीं. फार्म लॉ पे मत जाइएगा. अभी जो पढ़ा है उसी से बताइए, जितना हमने डिस्कस किया है. रेसिडुअरी लिस्ट कंसिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स विच वेर नोवेयर मेंशन्ड इन द 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, बिकॉज दीज थिंग्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन 1950. इंटरनेट था 1950 में. नेहरू जी मेल लिखते थे जिन्ना को, चिट्ठी लिखते थे. चिट्ठियाँ अभी भी रखी हैं आर्काइव्स में, राइट. सो जो भी समय के साथ नया आ गया, संविधान 1950 का है ना, तो बहुत सारी आज चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय नहीं थी. अब उन पे लॉ कौन बनाएगा? किस लिस्ट में जाएंगी? तो एक चौथी लिस्ट बन गई, रेसिडुअरी लिस्ट. पहली लिस्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये, और ये फोर्थ. दिस इज कंट्रोल्ड बाय सेंटर, दिस इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, दिस इज बाय बोथ, दिस इज अगेन बाय. क्या लग रहा है किसके पास ज़्यादा पावर है? सेंटर के पास है, स्टेट्स के पास? सेंटर के पास. दैट्स वाई एनी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, इन एनी स्टेट, इन हिज ऑफिस द पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज ऑलवेज केप्ट. दीवार पे फोटो लगी हुई है, किसी भी पार्टी के रहें वो, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगी हुई है, उनको बताने के लिए कि बड़े पापा लोग हैं. आप एज अ सोवरेन एक्ट मत करिए. सोवरेन समझते हो? व्हाट इज सोवरेन? देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड, ये प्रियम्बल में भी है हमारे. I'll discuss the preamble, then I'll talk about these things. Are the 3+1 4 lists clear to all of you? So if someone asks you what is central list, what is state list, what is residuary list, will you be able to explain? Good. No questions here? Right? Now, बताओ जी तुम लोग, कैसे पता? मैंने बताया सेंटर विल प्रिवेल. तभी तो अभी ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है. आपने कैसे कह दिया सेंटर ज़्यादा पावरफुल है? सबसे कौन से मैसेज समझा नहीं. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कौन से केसेस पे बनेगा, वो तो डिपेंड करेगा ना सिचुएशन क्या है.
दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवित दस्तावेज, अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? 1950 से आज तक एक नई लिस्ट आ गई ना, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। सो इट कीप्स अपडेटिंग विथ टाइम। चेंज मत बोलो, अपडेट बोलो। आपका फ़ोन अपडेट होता है ना, आपके लैपटॉप्स अपडेट होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। क्यों अपडेट करते हो फ़ोन को? बढ़िया फीचर्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो बढ़िया फीचर चाहिए। 2021 के प्रश्न 1950 की कागज से सॉल्व होगा क्या? तो चेंज होना चाहिए ना। इसीलिए बहता पानी अच्छा है, रुक गया तो सड़ जाएगा। इसीलिए प्रोविजन है। दैट्स वाई मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू सूट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ओके विथ ऑल ऑफ यू? नाउ एज यू आस्क्ड, व्हाट इफ सम गवर्नमेंट ट्राइज टू exceed those limits set by the constitution? So just now we saw that there are 3 parts of the state, and that's what we were discussing. I just explained you the first part, right? Legislature. Second, what was this? Law making. Example can you give? अभी भी मैंने बताया। Parliament and very good, state assemblies. Similarly, there is something called executive. Executive कौन होता है? हाँ, तेज बोलो। एग्जीक्यूटिव का भी कुछ रोल है, जैसे ये लेजिस्लेटिव का रोल है कि आप एक लॉ मेकिंग बॉडी हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है? एग्जीक्यूट करना। क्या हम कहाँ बैठे हैं? क्लास में। क्लास का क्या रोल है? लेक्चर्स होंगे, आपको बताया जाएगा, कोई यहाँ आके बताएगा। समवन हैज़ टू डू दैट। अब लोकसभा के जो खंबे हैं आपस में इंटरेक्ट करके तो बनाएंगे नहीं लॉ, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही जाना पड़ेगा, राइट? सो देयर जॉब इज टू मेक पॉलिसीज एंड लॉज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है, तुम बताओ, तुम मत पूछो। I just told you legislative is a law making body, and I also told you that executive will make the law and policy. So what is the difference? कौन से लॉ के हिसाब से? मैं पूछ रहा हूँ, पार्लियामेंट में यही लोग लॉ बनाएंगे, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हो गया? भाई पार्लियामेंट में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट में संसद भवन, जो सब्सिडाइज कैंटीन थी वो सब्सिडी भी हटा दी। लोगों ने इतना हल्ला मचाया दैट पार्लियामेंट हैज रिमूव्ड द सब्सिडी ऑन कैंटीन्स। डू यू नो दिस? आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द डिफरेंस? अगेन थिंक ऑफ इट। कौन साइन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर का। सारा सार यही छिपा है। इतना जो आप उठा पटक देश में देख रहे हैं ना, कभी इस पे कभी उस पे, यहीं पे सॉल्यूशन है। अगेन, व्हाट इज द डिफरेंस? हैव यू अंडरस्टूड बोथ? हैव यू अंडरस्टूड दिस? इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। Who will make the law? Executive will. So what is the difference again? वहाँ पे बैठ के बनते हैं। मैं आपको अपने घर पे तो नहीं बुलाता ना पढ़ाने के लिए, या आपने तो मुझे न्योता नहीं दिया कि सर रूम पे आ जाइए, राइट? हम लोग यहाँ हैं ना क्लासरूम में। इसी तरह द एग्जीक्यूटिव विल गो टू द लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ।
मोदी जी अपने पीएमओ में लॉ नहीं बना सकते हैं मोर को दाना खिलाते हुए. He has to come to the Parliament of India. Okay? Now why? अब समझ में आया? लॉ कहाँ बनेगा? लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर. कौन बनाएगा? बट कहाँ बनाएगा? वाई. वाई. जीत गए इलेक्शन, नंबर आ गए, मेजोरिटी प्रूव कर दी, लोगों ने वोट दिया है, फिर पार्लियामेंट आके लॉ क्यों बनेगा? पार्शियली एज इन 543. And that's not in parliament, it is in Lok Sabha. पार्लियामेंट का मतलब पता है क्या होता है? पार्लियामेंट क्या होता है? लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये होता है पार्लियामेंट. अब बार बार 540, इनका क्या गलती है भाई? ये भी माननीय है, सेम प्रिविलेज है, सेम पावर है. पता है आपको? सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, वो आगे देखेंगे मनी बिल पर. हाँ तो पार्लियामेंट बोलिए ना. आप पूरे एक हाउस को इग्नोर कर दे रहे हैं. एक क्वेश्चन आता है कि क्या राज्यसभा का रेलेवेंस है आपके एग्जाम में? जब तक है ना, अस्तित्व में है, तब तक आप लोग को यस ही लिखना है. देखिए, अपने एग्जाम में क्रांति करने की चेष्टा मत करिएगा. ओके, डोंट ट्राई टू बी अ डम एक्टिविस्ट. जो सड़क पे घूमते हैं ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद इडियट्स की तरह चिल्लाते हैं, वो हरकतें मत करिएगा. यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट. ब्यूरोक्रेसी के हाईएस्ट पोस्ट को आप लोग एम करना चाहते हैं और क्रांति चाहते हैं. सरकार क्यों लेगी आपको? सो प्रो इस्टेब्लिशमेंट अपने कंसर्न को रखना है. मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ में गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, जहाँ क्रिटिसाइज करना है कर दो, बट क्रिटिसाइज करने का भी डेमोक्रेसी में तरीका होता है, वही हमें सीखना है. ओके, देयर इज अ लिमिट टू क्रिटिसिज्म एंड योर डिसेंट हैज टू वेंट आउट इन अ वे. दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन टीचेस अस एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जब तक जो चीज़ है वैसी, आप एकदम रेडिकल उसमें मत लिख दीजिए कि इसको हटा दो, कोई रूल. नो, जिस दिन हट जाए उस दिन लिखना, इसको तो बहुत पहले हटना था. ओके, विल डिस्कस दीज थिंग्स. यू हैव टू बी प्रो एस्टैब्लिशमेंट, प्रो स्टेट रहना है. पार्टी छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं छोड़ सकते. ओके, यू विल बी द एजेंट ऑफ द स्टेट. आप स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे ना? So they will make law always in the legislative body. Now the question is why? Why? Now we will come to the numbers that I was talking about. पार्लियामेंट में क्या है बताइए? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा. कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 543. सरकार बनाने के लिए कितने सीट चाहिए? भारत सरकार को भारत सरकार बनने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें चाहिए? हाउ मेनी सीट्स डू दे नीड? 272 हो जाएगा ना? दैट इज द मैजिकल फिगर. ओके, दैट इज द मैजिकल फिगर. You get 272 लोकसभा सीट्स, you are the government of India. इसके पीछे कोलिशन में अभी नहीं जाएंगे. I don't want to complicate things in the first class. We'll come to everything. Don't worry. आपको पता है, अच्छी बात है, थोड़ा सब्र करिए. So in order to form the government of India or to be the government in India, how many seats you need in Lok Sabha? 272 out of? Currently the government has how many seats? Something. 382 नहीं है, 282 पहले थे 2014 से 19 में. 2014 से 19 में
they had 282. 2019 to 24 चाहिए कितना? So after Rajiv Gandhi, it was Narendra Modi who could breach this mark. राजीव गांधी कब थे भाई? कौन सी टाइम मशीन आ गया? 73 में राजीव को ले गए. 30th October 1984 Indira Gandhi was killed. Rajiv Gandhi was sworn in as the president, prime minister. He won the next elections. In fact, he won with maximum numbers ever. 5 उस समय 545 था. तो राजीव जी के समय 545 में 400 प्लस सीटें आ गई थी. उतनी मजबूत सरकार ना नेहरू बना पाए ना इंदिरा बना पाए. वॉट एवर द रीज़न, आई एम नॉट गोइंग इनटू दीज स्टफ. सिंपैथी था या क्या था, कौन था, लेट अस नॉट डिस्कस दीज थिंग्स. जो हमारे सिलेबस और कोर्स में उसी पे बात करते हैं. सो ही गॉट मोर देन 400 प्लस सीट्स, राइट. और जब वो हारे तो बहुत बुरी तरह हारे. 89 के बाद, 89 में राजीव गांधी इलेक्शंस हैपेंड आफ्टर एवरी 5 years. हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो इट वाज फ्री एंड फेयर, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट. अरे स्टेट अगर अपने पे आ जाएगा तो आपको लगता है इलेक्शन हार जाएगी? कोई भी स्टेट अगर अपने पे आ गया, और ये तो 400 प्लस थे, कौन रोकता? तो दैट इज वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कौन है? आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं. इलेक्शन कमीशन है. कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में है. ओके. ही लॉस्ट. फ्रॉम 89 to 2014 no one could get these seats, these many seats on their own. So इस एरा को कहते हैं कोalition एरा. ओके. किसी की 150 सीटें आई तो फिर जितना चाहिए उतना सपोर्ट ले लिया, ये अलाउड है. तो मिली जुली सरकारें चलती थी भारत में 30 साल तक, जब तक मोदी जी नहीं आ गए. Now in 2014 he got 282, now he has got 303 seats. So अभी की बात करते हैं, 14 को छोड़ो. 543 में 303 एक पार्टी के पास है, राइट. बाकियों के पास कितना है? जोड़ो ना, सी सेट भी देना है ना, घटाओ. 240. So if one party has won these many seats, others have won these many seats, because they have breached the number, they are the government of India. फिर ये भी तो है. So the moment, please listen carefully, the moment government, अभी government यही है, headed by Modi. So the moment they bring a bill, a law, there are other people who will oppose it. कुछ आपको अच्छे अच्छे डिबेट्स मैं बोलूँगा देखने के लिए, देखिएगा. ट्रिपल तलाक का बिल आया. Asaduddin Owaisi stood and said that I do not support this bill. And he was the only MP of his party. अभी उनकी जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, they have 2 MPs out of, and imagine a 2 party or a 1 party MP saying that I will not support this bill. वो रोक पाएंगे? भाई 2/543 ज़्यादा बड़ा होता है या 303/543? नंबर किसके पास है? सो उनके कहने का क्या अर्थ था? वाई ही सेड दिस? बिकॉज ही वॉज मेकिंग हिज स्टैंड क्लियर. आई डू नॉट सपोर्ट दिस बिल. द गवर्नमेंट सेड वी आर पासिंग दिस बिल. Some out of these 240 came with the government that please pass this bill. Some opposed the government. We as citizens of India got to know who is on which side of the debate. This is the hallmark of democracy. अरे अगर ये जीत कर गए हैं तो ये भी तो जीत के गए हैं. इनको भी तो लोगों ने अपने क्षेत्र से जिता के भेजा है.
So what they are doing, we as people of this country deserve to know these things. Are you understanding? So that is why even if you have the numbers, there is a certain procedure in the parliament. You have to introduce the bill. Law Minister Mr. Ravi Shankar Prasad introduced the Triple Talaq bill. Every member is served a printed copy. जैसे आपको प्रिंटेड नोट्स मिला है ना, क्यों? ताकि वो पढ़ ले इसके प्रोविजंस क्या हैं, फिर अपना मन बनाए सरकार को सपोर्ट करूं या अपोज करूं, कंटेंट जानेगा तब तो. ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दीज वेरियस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देयर विल बी अ डिबेट, अ डिस्कशन, नेगोशिएशंस. वी एज सिटीजन्स विल बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. इतना आसान नहीं है बिल पास करना. विपक्ष बैठा है ना, यू आर 303, दे आर ऑल्सो 240, राइट. और मैं कह रहा हूँ कि 30 साल बाद ऐसी कोई पार्टी आई है, एक नेता आया है जो मेजोरिटी ले पाया है. मेनी अ टाइम्स मोदी जी हैज़ टू स्ट्रगल इन पार्लियामेंट टू कन्वे व्हाट ही वांट्स टू, क्योंकि विपक्ष शोर करता है, उनको अपोज करता है. यही विपक्ष का काम है, राइट. आप और हम डिसाइड करें हम किसको सपोर्ट करेंगे, बट इशू तो जाने. दैट इज़ वाई लॉ मेकिंग बॉडी में ही लॉ बनेगा. अब आया समझ में दोनों में डिफरेंस? इज इट ऑल राइट? एनी क्वेश्चंस हियर? एनीथिंग? बिल सरकार के ही पास होते हैं, विपक्ष के नहीं. हाँ, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही. तो आपको असर क्यों पड़ रहा है इतना? क्यों पड़ता है? एग्ज़ाम आप ही को देना है ना, आपकी आंसर शीट पे आप ही रहेंगे. इतना रिएक्ट मत क्या करिए, बताइए. फर्क पड़ता है ना. देखो बता रहा हूँ, there have been many times a situation has come where government has not been able to pass the bill. 2014 से 19 के बीच में लैंड अमेंडमेंट एक्ट सरकार लेके आई थी. यही मोदी थे, यही बीजेपी थी. नंबर भी 10 ज़्यादा ही थे, 282 पे थे, नहीं पास हो पाया. और अगेन मैंने क्या कहा, डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. वी एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री डिजर्व टू नो आवर लीडर्स आर ऑन विच साइड ऑफ द डिबेट. इनका स्टैंड क्या है इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर, हमको आपको पता चला ना, फिर हम लोग अपना ओपिनियन बनाएंगे, किसको सपोर्ट करना है, किसको अपोज करना है. अब पता चला फ़र्क क्या पड़ा. अगर डिबेट नहीं होगी तो आप कैसे जानेंगे? चलो सरकार के पास नंबर है, किसी तरह से अगर सरकार अपने पे आ जाए तो बिल पास करा ही लेती है. But who is supporting the government, who is opposing the government, and for what reasons? Me and you deserve to know these things, don't we? हम लोग हकदार हैं ये जानने के, नहीं? You got your answer? Yes. Any other question? Are these two things clear? You know the difference between the executive and legislature by now? Anyone who has any doubt, छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो. आपको आ रहा है समझ में? हाँ, making two houses, again we'll see it. It is Rajya Sabha is actually a council of states. We'll see what is the purpose. Again to keep a check on Lok Sabha also. मैंने जिस बिल के बारे में बताया ना, लैंड अमेंडमेंट, वो राज्यसभा में रुका था. लोकसभा में तो पास करा लिया था, नंबर थे ना 282 उस समय, 14 to 19. राज्यसभा में नहीं करा पाए. डिपेंड करता है बिल कौन सा है, डिपेंड करता है. नियम है बिल्कुल, बट that depends on the type of the bill that you are passing. Let us not go into those things. सबका समय आएगा. अभी बस मैंने कहा ना कि मैं आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. ये जानना ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं.
जैसे आपने कहा ना कि ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका, आई एम ग्लैड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि क्या फ़ायदा जब सरकार का बिल पास हो जाएगा। सरकार का तो बिल पास होगा, लेकिन कौन सरकार का स्टैंड क्या ये तो पता चला, और विपक्ष का क्या स्टैंड ये भी पता चला। वी कैन फॉर्म आवर ओपिनियंस। विपक्ष बोले कि ना गलत बिल है, राइट, गलत बिल है, इससे ये होगा वो होगा, सरकार बोले कि कुछ नहीं होगा। लेट देम डिस्कस, वी आर लिसनिंग, वी आर वॉचिंग। ला सकता है, 14-15 बार प्राइवेट मेंबर बिल भी पास हुए हैं। अगर आप पूछोगे प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ इन चीज़ों में। गवर्नमेंट बिल होता है और एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। 14-15 बार प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। एक एमपी खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे ये बिल पास कराना है, कई 14-15 बार पास हुआ है। देखेंगे क्या होता है ये सब, ठीक है। कोई भी एमपी बिल ला सकता है, बट चांसेस किसके ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के या प्राइवेट मेंबर के? गवर्नमेंट के। क्यों? गवर्नमेंट के पास नंबर है। प्राइवेट मेंबर को पूरे सदन को कन्विंस करना है कि भाई बहुत बढ़िया बिल लाए हैं, पास करा दो। सरकार कन्विंस होगी तभी पास होगा। बट हमारा आप जान रहे हैं ना कि कौन इस इशू के, एनी पर्टिकुलर इशू, whether it is CA, whether it is triple talaq or any damn issue, farm laws, me and you know which party and which MP or is supporting or opposing these things, and we deserve to know these things. Got it? हाँ बिल्कुल, कोई भी MP, मैंने बोला आपको कि गवर्नमेंट का MP आएगा और विपक्ष का नहीं आएगा। Any MP is a part of executive. Okay? And when a bill is passed by the Parliament of India, तो वो मोदी का बिल नहीं है, वो संसद का बिल है। Opposition also sits in the same parliament. Okay? Opposition also sits in the same parliament. The moment bill turns into act, पास होने का मतलब है बिल एक्ट बन गया, लॉ बन गया। एक्ट मतलब लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम खत्म, लेजिस्लेटिव प्रोसेस खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूटिव अब उसको नहीं कुछ कर रहा है। ठीक है, तो लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थिंग्स कि एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है। दोनों का कंपार्टमेंट अलग अलग है, रोल अलग अलग है। ओके, अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कहा गया। मैंने आपको कहा था, आपने पूछा था शायद पसंद द लास्ट, आप ही ने पूछा था ना कि अगर मनमानी करने लगे नहीं कर पाएंगे ना। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू चेक्स एंड बैलेंस। लेजिस्लेटिव चेक्स द एग्जीक्यूटिव, हाउ? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय रेजिंग डाउट्स, बाय प्रपोजिंग द ऑल्टरनेटिव। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे दूंगा, डोंट वरी, बट थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ जिसको आप जाके गूगल करें। आप वेरीफाई करने के लिए गूगल कर लेना, बट समझ जाओ पहले उसके बाद। ओके, सी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ डेड सब्जेक्ट। ये आपके आसपास घट रहा है, इट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। एट द मोमेंट यू लर्न टू ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएट दीज थिंग्स, दिस सब्जेक्ट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। नहीं तो नहीं झेल पाओगे। आपको लगता है कि 4 किताब ला के आप पढ़ लोगे, पढ़ के देखो। You are not the first one who thinks so, right? So it will become very dry and you will not even understand. And if you try to cram things, अगर आप बिना समझे रटने की चेष्टा करेंगे, backfire कर जाएगा। It is a lively subject. If you are saying that you do not like polity or constitution, I'm sorry but I have to say this, then perhaps you are being taught by the wrong teacher. और मैं ये बात पहली क्लास में आपको कह रहा हूँ। तो 10 दिन बाद अगर आपको ऐसा लगने लगे तो मैंने गलत पढ़ाया है, मेरे पे ब्लेम आना चाहिए, समझे? सो प्लीज़ जैसा बोलता हूँ वैसा बस करिएगा। अभी मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। Executive is answerable to the legislature. Executive cannot make laws on their own sitting in their room or house or whatever. They have to come to the lawmaking body, discuss, debate, negotiate with the opposition, follow a lot of procedures.
बिल पास करने का 5-6 स्टेज है, इतना आसान नहीं है बिल पास करना। लीव ऑफ द हाउस लेना पड़ता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, कमिटी स्टेज, then it goes to the other house, same process is followed, then it goes to the president. The moment president signs, government has to notify the bill. महीनों सालों लग सकते हैं। And me and you as citizen of this country, इतने दिन में हम लोग जान जाते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा MP सपोर्ट में है, अपोजिशन में है इस पर्टिकुलर इशू के। Got it? So legislature controls the executive. Why? Because there are certain elaborate procedures in the lawmaking body which the executive has to follow in order to make policies and laws. Are we all clear on this? Any doubt anyone has? Any doubt anyone has? Okay. We'll see these things again and again. ये सब आता जाएगा आगे, but पहले दिन समझना आवश्यक है। Executive also controls the legislature. How? Just now we saw that legislature controls the executive because it has a very detailed, elaborate processes that are to be followed if the executive wants to pass the law or make the policy. Let me tell you who is executive. सबसे पहले तो आपको पता है, but मैं clearly बता देता हूँ। To make policies and laws, इनका ये रोल है। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव इंडिया में प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल। रियल कौन है? ही इज द रियल हेड। अगेन एक चीज याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। ये नॉमिनल है, ये रियल हेड है। सारा काम प्रधानमंत्री कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को साइन करना ही है। ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो मना कर सकते हैं, अगेन अभी उसमें नहीं जाएंगे। ओके, सो टेक्निकली स्पीकिंग हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, बट ऑल द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, PM प्लस कॉम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका मंत्रिमंडल। और भी मिनिस्टर है ना, तो 3 नाम बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राइट। तो PM चूज करते हैं कि मेरा लॉ मिनिस्टर कौन होगा, मेरा फाइनेंस कौन होगा। ये PM का ही प्रेरोगेटिव है। ओके, कैबिनेट इसी का एक पार्ट होता है। एक्चुअली द वर्ड कैबिनेट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वर्ड यूज हुआ है वो यही है, COM और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ ये भी 3 तरह के होते हैं। अब आपने पूछा है तो मैं अभी बता ही देता हूँ इसको। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं मिनिस्टर्स, या इनको आप कह सकते हो सीनियर मिनिस्टर्स। इसको आप सीनियर कह सकते हैं। देन एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और असल में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। देन एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट, there is something called MOS or Minister of State. Who are these people? They are very junior people. I'll give you some examples. एक कोई MOS का नाम पता है किसी को? नित्यानंद राय। कौन सा उनका है? अरे तो होम के ऊपर अमित शाह बैठे हैं ना, इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना वो। MOS जैसे ठीक है, नित्यानंद राय हैं, किरण रिजिजू हैं, VK सिंह हैं, गिरिराज अब इंडिपेंडेंट हो गए। सो इन मोदी वन ही वॉज नॉट। ओके, शशि थरूर थे। शशि थरूर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर MOS थे। इनको जूनियर मिनिस्टर कहते हैं। सो व्हेन थरूर वाज ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर MOS, हिज बॉस वाज मिस्टर SM कृष्णा।
S.M. Krishna was the foreign minister of India when Manmohan Singh ji was the prime minister. So means Tharoor was helping his senior S.M. Krishna. Similarly, in Modi 1, Kiren Rijiju was the MOS home. He was assisting his senior minister, Mr. Rajnath Singh. Got it? तो MOS कौन हुआ? जूनियर मिनिस्टर. थरूर कहते थे कि MOS का रिस्पेक्ट पूरा है, बात कोई नहीं सुनता है. जब वो पहली बार मिनिस्टर बने थे, MOS थे, कि क्योंकि एक मिनिस्टर बैठे हैं तो हम लोग को कोई समझता ही नहीं है कुछ. सो इनका काम क्या होता है? कहते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग, कि अगली गवर्नमेंट अगर आपकी पार्टी की आ गई तो आप मिनिस्टर बन जाएंगे. देन एक्चुअली यहाँ पे वो होते हैं ना, हु आर कंसिडर्ड टू जूनियर इन पॉलिटिक्स. जैसे शशि थरूर उस समय थे, किरेन रिजिजू तब थे. ओके, कि अभी यंग है, मतलब 45 साल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए यंग माना जाता है, सैडली सो, राइट. तो ऐसे लोगों को यंग माना जाता है. तो और ये अगेन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इलेबोरेट एंड डिटेल्ड प्रोसेस. बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें. तो मिनिस्ट्री चलाना कोई आसान काम नहीं है. एक सिनेमा वाले थे, एक बार मैं नाम नहीं बताऊंगा, ही बिकेम अ मिनिस्टर, विद इन 2 months ही रियलाइज्ड कि ना होगा. मिनिस्टर का काम बना हुआ, बहुत बने हैं, आप गेस करते रहिए. सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लर्निंग प्रोसेस, दैट्स वाई इनको MOS बनाया जाता है. फिर इससे ऊपर एक कैटेगरी होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट. मिस्टर जयराम रमेश, when Dr. Manmohan Singh was prime minister, he was minister of state independent environment. Independent का मतलब हुआ कि इनके ऊपर कोई बैठा नहीं है. Like I told you, थरूर के ऊपर कृष्णन बैठे थे, तो थरूर यहाँ पे थे, शशि थरूर. इनके ऊपर इनका एक सीनियर बैठा था, SM कृष्णा. इंडिपेंडेंट में जैसे जयराम रमेश थे, तो देयर वाज नो सीनियर मिनिस्टर whom he will report. But still he is senior to these people but junior to these people, somewhere in between. Got it? MOS independent ना, मतलब ऐसा ही कोई environment को बना देते हैं जहाँ पे एक सीनियर आदमी को नहीं जाना है, तुमसे हो जाएगा, मतलब you will take care of it. It is not a very important ministry, as was the case with environment ministry in 2012-13. Got it? So इसी तरह से गिरिराज सिंह को बनाया गया था हेवी मशीनरी का कुछ, तो वो भी MOS इंडिपेंडेंट थे. विच मीन्स यू डोंट नीड अ सीनियर पर्सन टू बी देयर. एनीवन समवेयर बिटवीन दीज कैन टेक केयर ऑफ इट. नो सीनियर पर्सन इज नीडेड. टू जूनियर टू बी एन MOS, टू सीनियर टू बी अ मिनिस्टर. सॉरी, दूसरी तरह से, टू जूनियर टू बी अ मिनिस्टर एंड टू सीनियर टू बी एन MOS. ये होते हैं MOS इंडिपेंडेंट. अब आते हैं पुराने लोग, इनको कहते हैं जो MOS नहीं है, ना इंडिपेंडेंट है, ना इनके साथ कोई मिनिस्टर है सीनियर. ये ही सब कुछ है उस मंत्रालय में. द बक स्टॉप्स एट हिम. होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड CCS. दिस वर्ड कीप्स कमिंग इन न्यूज़पेपर. ओके, व्हाट इज CCS? Cabinet Committee on Security. So it consists of Home Minister, External Affairs Minister, Defense Minister, Finance Minister, and is headed by the Prime Minister. So how many people? इसको क्या कहते हैं? CCS. सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है सरकार में. Got it? सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी डिसीजन यही लोग लेते हैं. अब देखिए ना कौन लोग बैठे हैं. आरंट दे वेरी क्लोज टू, मतलब जिन पे PM ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग ही ना इन पोस्ट पर हैं. तो सिक्योरिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, कुछ भी अगर लेना है डिसीजन तो यही 5 लोग मिलके लेते हैं. गॉट इट? CCS में 5 हैं, PM हेड है और ये 4 लोग हैं. चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो.
This term keeps appearing in newspaper often. Cabinet Committee on Security. So we learned the hierarchy of the government. जूनियर मोस्ट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उससे सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, उससे सीनियर मिनिस्टर, और उन सारे मिनिस्टर्स में सबसे सीनियर CCS. इज इट ऑल राइट? नो क्वेश्चंस व्हाटसोएवर? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यार थोड़ा तो डाउट होना चाहिए ना, या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है. सो विच कैटेगरी आर यू बिलोंगिंग टू? जूनियर. जूनियर ये दोनों है ना? नहीं, स्टेट में नहीं, सेंटर में ही रहते हैं, बट इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं. जैसे होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय मिस्टर अमित शाह, बट होम मिनिस्ट्री को ना प्राइम मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माना गया है. So too big a department to be taken care by one single person. So he gets some MOS. अब ना बताओ, एक तो वो है ना रेड्डी हैदराबाद वाले, और एक कौन है? नित्यानंद राय, एंड ये मिस्टर रेड्डी, ही इज फ्रॉम हैदराबाद. ये दोनों क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्टर कौन है? अमित शाह. बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत सारा काम है, पूरे देश की इंटरनल से एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मसला है, तो इनको दो लोग असिस्ट करने के लिए हैं जो इनसे काफ़ी जूनियर है. समझ में आया? इंडिपेंडेंट कौन होता है? इंडिपेंडेंट के ऊपर ये कोई नहीं होता है. जैसे जयराम रमेश इन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, MOS इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट. There was no senior person to whom he was reporting. Okay, got it? General VK Singh. VK Singh became minister in 2014. He was given MOS independent. North East affairs. नॉर्थ ईस्ट का कुछ सरकार ने बनाया हुआ है, तो उसके लिए अब नॉर्थ ईस्ट इज नॉट समथिंग वेयर यू नीड अ सीनियर पर्सन और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए. नो, मेन तो यही है ना. सो उनको इंडिपेंडेंट चांस दिया गया था. Then later on he became MOS External Affairs. When Sushma Swaraj was Foreign Minister, VK Singh and MJ Akbar and VK Singh were MOS to Sushma Swaraj. Foreign Ministry एक बड़ी मिनिस्ट्री है, External Affairs Ministry, इसी को Foreign Ministry कहते हैं. तो दो इनको MOS दिए गए थे. नहीं, मंत्रियों की सैलरी एक ही होती है, पर्क्स प्रिविलेज अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है. हाउ डज दैट मैटर कितनी सैलरी है? बोलेगा कि सर MOS से मिनिस्टर बना दीजिए, सैलरी बढ़ जाएगा. ऐसा हो सुना कभी कि मुझे सीनियर बनाओ क्योंकि सैलरी बढ़ेगी? हाँ, ये बोलो. तो नथिंग टू डू विद द सैलरी. नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज पे भी 91st अमेंडमेंट है. आप 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. आप वेलकम टू दीज थिंग्स. वाजपेयी जी ने ही पास किया था उसको. वेलकम टू दीज थिंग्स बाद में. कितनी नंबर ऑफ मिनिस्ट्री हो सकती है? ओके, सो दिस इज दी रोल. ये किसका पार्ट है सारे मिनिस्टर? अपोजिशन के MP, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है. ऑल द 543 लोकसभा मेंबर्स एंड 245 राज्यसभा मेंबर्स आर पार्ट ऑफ. बिकॉज अगेन आपने एग्जीक्यूटिव के नीचे क्या लिखा था? दे हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेकिंग पॉलिसीज एंड लॉज. ओके, अरे अपोजिशन के MP ने अगर अपोज ही किया किसी बिल को, ही प्लेड अ रोल, राइट? He played a role, and many a times it has happened that an opposition MP says कि ऐसे नहीं ऐसे करो, सरकार मान लेती है.
तो जो फाइनल बिल आ रहा है, इसलिए मैंने कहा वो पार्टी का बिल नहीं है, वो पार्लियामेंट का बिल है। उसके कितने प्रोविजन पे अपोजिशन ने कितना माथापच्ची करा है और गवर्नमेंट के साथ बैठ के हाउ मेनी नेगोशिएशंस हैव हैपेंड, फिर तो रिकॉर्ड रखते हैं, वो जानेंगे। गॉट इट? सो एग्जीक्यूटिव मीन्स all the MPs in the center and MLAs in the state. विधानसभा भी तो है। Now executives are of two types. Any problem in the hierarchy of the government, CCS समझ में आ गया, मिनिस्टर आ गया, MOS इंडिपेंडेंट और MOS भी आ गया, ये भूलोगे नहीं। If you want to write, I can make you write, but समझ में आ गया ना? Now second thing, executive are of two types. Can anyone name?